मिलेंगे, and these will be harsh conditions. For example, light, a platinum catalyst and pressure and 1000 Kelvin temperature, hot platinum, high pressure, gold, high pressure. Fine. So you don't have to look at the reactants. इससे आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है. This is going to tell you whether it is a zero order reaction or not. Because in this case, the first case, the rate of reaction is going to depend on, it's going to depend on the light. कि कितना आप light दे रहे हैं. If you're giving a large amount of light, then the reaction will be faster. If you are giving less intensity, the reaction will be slower. In the next case, it is going to be dependent on pressure and temperature. If the pressure and temperature is high, the reaction will be faster and so on. Similarly, अगले cases में भी वही हो रहा है ना? You are having high pressure and high hot platinum, that is high temperature. Fine. So in cases में reactant से हमको मतलब नहीं है, मतलब है condition से. So condition is defining the rate of reaction will be faster or slower. Does it make sense? Yes or no, Amna and Taha? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Next is the first order reaction. So this will be very similar to what we did in the zero order reaction. We will take the experimental rate, we will take the theoretical rate, and then we are going to equate it, then integrate it, and then we will get a constant. उस constant की value निकालेंगे, and then we will get our equation, right? The integrated rate equation that we are looking for. चलिए, now first order में देखिए जरा आराम आराम से देखते हैं. A giving product, rate is going to be minus dA upon dt. This is a theoretical rate. The experimental rate will be R is equal to K into concentration of A to the power 1, because we are talking about the first order reaction. Now this is also rate and this is also rate, so we can equate them and we will get minus dA upon dt is equal to K into the concentration of A. Now we will do variable separation. The concentration of A will go this side and the dt will go that side. Now we have dA upon A, that is equal to minus K dt. When we integrate on both the sides, I will get integration of 1 upon A dA will be equal to minus K into the integration of dt. Minus 1 upon A, it is going to be ln A, and minus KT will be equal to C. Does it make sense till here? Yes or no, please tell me. Amna Yes. and Taha. Yes, sir. Right? Now we have to find out the value of C. तो उसके लिए क्या करते हैं? T को 0 रख देते हैं. At time 0, the concentration of A will become A naught, and our equation will be ln A naught will be equal to minus K into 0 plus C. That means C is equal to ln A naught. एक बार इसको देख लीजिए जरा. When time is 0, A is equal to A naught का मतलब A naught is the initial concentration ना. A naught क्या है? It is the initial concentration. Right? So time 0 पे A क्या हो चुका है? A naught. तो ln A naught is equal to minus K time to 0 minus K into 0 plus C. So C will be equal to ln A naught. Does this make sense? Amna and Taha, yes or no? Hanji. Make Yes. sense? Right. Yes, So in place of C, we can write ln A naught. So that's what we have done. इस इक्वेशन में अब हम लोग को क्या करना है? C की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने. तो ln A का ln A ही है, is equal to ln A naught minus KT. Or you can say KT is equal to ln A naught minus ln A. Does this make sense? देखिए जरा. Yes. It's very similar to the first zero order वाला. A is equal to A naught minus KT था. बस यहाँ पर और यहाँ पर ln आ गया. देखो जरा. Yes or no, Taha? Yes, sir. है ना? Remaining concentration is equal to initial minus the reacted concentration. Fine. यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे बस ln और ln आ चुका है. Now KT is equal to ln A naught minus ln A. In this we will plug in the quotient rule, that log of A upon B is equal to log of A minus log of B. So log of A minus log of B will be equal to log of A upon B, ln A naught upon A. Make sense? Yes, sir. When we convert from ln to log, the common log, we will multiply 2.303. So this is the equation that we have to remember. इस पे एक जरा लिख लीजिए, एक जगह कहीं पे लिख लीजिए please. Because once we do questions, you have to use this particular equation. KT is equal to 2.303 log A naught upon A. Yes, sir. ना आपने भी लिख लिया? Yes, Amna, are you done? yes, sir. Okay. Next.
टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टी हाफ. टी हाफ क्या है? वंस अगेन, टी हाफ इज द टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन. तो जब टी हाफ होगा, बाय डेफिनेशन है ना, टी हाफ जब होगा तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इनिशियल का आधा. ठीक है, तो बिकॉज टी हाफ का मतलब ही यही है. टी हाफ इज द पॉइंट व्हेन द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड. कैसे कंप्लीट होगा? व्हेन यू आर गोइंग टू हैव, when you are going to have half of the reactant remaining, half of the reactant has been reacted. Now T, वही अब यही इक्वेशन है हमारे पास, Kt is equal to 2.3. यहाँ पे T half हम लोग निकालना चाह रहे हैं. फाइन, T half के लिए T half is equal to 2.303 divided by K log of A naught upon remaining. रिमेनिंग कितना है? A naught upon 2 ना. देखिए जरा, दिस इज इनिशियल, नीचे क्या आना चाहिए? रिमेनिंग. रिमेनिंग कितना है T half पे? A naught upon 2. तो A naught upon A naught upon 2, तो A naught कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाएगा. 2.303 into log 2, it is equal to 0.693. So this is the T half. This is also very important. ये भी आपको याद रहना चाहिए. इतना ज्यादा याद रहना चाहिए कि if the T half is given, then the examiner they expect that you already know the K. मतलब अगर वो T half दे रहे हैं तो इसका मतलब K दे रहे हैं. If they are giving the K, that means they are giving the T half also. ठीक है, it is that important. ये इतना ज्यादा important है कि if there is a question of first order reaction, if there's a numerical of first order reaction, then they will never give you K, they will give you T half. जब T half की जरूरत होगी वो K दे देंगे. So that you should remember, ये आपको याद ही रहना चाहिए, 0.693 upon K. I hope I have made it clear that how important this particular equation is. Yes or no? Yes, sir. Fine. Another thing, conclusion that we can see from this particular equation is that the half life of first order reaction, इसमें यहाँ पर कोई concentration नहीं आ रहा है. देखिए जरा, it is not dependent on the initial concentration, it is only dependent on the rate constant. सही है? Yes. ठीक है, अब यहाँ देखिए, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक, ध्यान सुनिएगा जरा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से. लेट्स सपोज द टी हाफ ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन वाज फाउंड आउट टू बी 10 मिनट्स. कितना है टी हाफ? हाउ मच इज द टी हाफ? 10 आमना, minutes. आप आमना माइक ऑन रखिए ना, अभी तो लिखना नहीं है तो फिर बोलना तो पड़ेगा कम से कम, है ना. Yes. ध्यान सुनिएगा, टी हाफ कितना है आमना? 10 minutes. तो 100 से 50 आने तक में लगेगा 10 मिनट्स. ये सुनो, Yes. फिर 50 का आधा कितना? तो 25. 50 से आधा आने में भी वापस 10 मिनट लगेगा. मेक सेंस था? Yes, sir. 25 से मतलब आपके पास पहले 100 मोल था, है ना. ए वाज, रिएक्टेंट वाज 100 मोल. 100 से 50 तक पहुंचने में 10 मिनट, 50 से 25 में 10 मिनट, 25 से 12.5 में 10 मिनट एंड सो ऑन. डज इट मेक सेंस? Yes. ठीक है, ध्यान सुनिए जरा. यहाँ पे अब देखिए, ये आपके पास है टी 0%, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. टी 50% मतलब जब रिएक्शन आपके पास 50% कंप्लीट हो गया, 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज रिमेनिंग. टी 75% का मतलब क्या होता है? टी 75% का मतलब होता है व्हेन only 1/4 of the reaction is remaining. 1/4 of the reactant is remaining. That means 25%, 25 reactant बचा है अभी. T75 का मतलब T7, ये 75% नहीं होगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा. Hope this makes sense. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. है ना. Yes, sir. अच्छा, जैसे T को 50% को हम लोग क्या बोलते हैं? T1/2. वैसे ही T75% को हम लोग क्या बोलेंगे? T3/4. Hope this is also fine. Yes or no? Yes. Yes. टी हाफ में हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? A0/2, है ना. T75% में हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? A0/4. होप दिस ऑल्सो मेक सेंस. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, रिमेनिंग sir. अमाउंट. फाइन. नाउ व्हाट यू कैन सी इज दैट टी 50% 10 मिनट था, लेकिन टी 75% मतलब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में कितना मिल रहा है? 10 + 10 20 मिनट. कैन यू सी दैट? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो टी 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 50%. ठीक है. अब टी 100% कब होगा? तो टी 100% के लिए हमारे पास ए शुड बी इक्वल टू 0. नाउ व्हेन वी प्लग इन द फॉर्मूला, टी 100% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 0. तो ए नॉट अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पूरी चीज इन्फिनिटी हो जाएगी. फाइन. तो टी 100% जो होगा, इट विल बी इन्फिनिटी. तो कंक्लूजन क्या है? द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन. वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है. डज इट मेक सेंस? सुनो, बिकॉज उसको कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा. तो जो ग्राफ भी बनेगा ना, तो ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा.
ना, एसिम्प्टोट टाइप का रहेगा। इज गोइंग टू मतलब वो इन्फिनिटी पे जाके टच होगा फिर। डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए तो आप एक बार इसको भी लिख लीजिए जरा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इन न्यूमेरिकल्स। Under. ओके, चलिए दिस क्वेश्चन बताइए जरा, 25 एंड 26। सर प्रोवाइडेड तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। 25 वाला? हाँ। हाँ, वही तो एग्जांपल्स आज दिखाए थे ना, नहीं दिखाए थे एग्जांपल्स? एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। याद आया? कंडीशन देखना है ना? दिस विल यस। बी व्हाट, दिस विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट अबाउट 26? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। 0. हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। खैर, आपको शायद याद, नोट देखिए तो नोटबुक में आपने लिखा हुआ है, कल लिखाया था हमने। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा था। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर कल कल नहीं लिखा था आपने जीरो ऑर्डर के लिए कुछ भी? नहीं। ओके, इट विल बी आर नॉट अपॉन टू के, है ना? आर नॉट अपॉन टू के विल बी द करेक्ट आंसर फॉर जीरो ऑर्डर। हाँ, करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तो पहला ग्राफ तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू के इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। So if I increase the concentration of A, the rate is also going to increase. So that it will be a linear graph with a, positive slope, and it will be passing through the origin. Y is equal to mx type of graph. Then we have this graph. दो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा आराम से सुनिए जरा, है ना? ताहा एंड आमना, आर यू गाइस लिसनिंग? Yep. ठीक है, वी हैव टू इक्वेशंस। एक तो ln वाला इक्वेशन है, एक log वाला इक्वेशन है। कौन से दो इक्वेशन? टेल मी गाइस। ln वाला और log वाला. ln वाला और log वाला, दोनों के लिए सेम प्लॉट इज सेम। तो इसको ना दोनों को ही एक ही ग्राफ में हम शो कर देते हैं। फाइन, देखिए वाई एक्सिस में आपके पास क्या रहेगा? ln a रहेगा और टाइम रहेगा, अगर आप ये वाला पहला वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। और अगर आप दूसरा वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, देन इट विल बी log a एंड वर्सेस टाइम। फाइन, टेल मी यस और नो। सर आप रिपीट कर सकते ठीक है, देयर आर टू इक्वेशंस, बट बिकॉज उनका प्लॉट ना ऐसा आता है, तो दोनों ही को ना एक ही ग्राफ में शो कर देते हैं, बट उसमें बस ये रहेगा कि जो इंटरसेप्ट है और आपके पास जो स्लोप है, दैट विल बी डिफरेंट। वाई एक्सिस विल बी डिफरेंट, द एक्स एक्सिस इज सेम। इफ वी आर प्लॉटिंग फॉर द फर्स्ट ग्राफ, तो हमारे पास y एक्सिस में होना चाहिए ln a एंड यहाँ पे टाइम। इफ वी आर प्लॉटिंग फॉर द सेकंड ग्राफ, इट शुड बी log a इन द y एक्सिस एंड टाइम इन द x एक्सिस। ये कहना चाह रहे थे, मेक सेंस था? हैं। यस सर। ठीक है ना? यस। व्हाट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की अगर हम बात करें तो मतलब दोनों केस में आपके पास ऐसे ऐसे रहेगा, है ना?
इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी एल एन ए नॉट. इफ आई टॉक अबाउट द लॉग वाला पार्ट, इट इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ ए नॉट. डज दिस मेक सेंस? Yes. m की अगर हम बात करें तो इन दिस केस द स्लोप विल बी माइनस के. इन दिस केस द स्लोप विल बी माइनस के अपॉन 2.303. बस ये फर्क है. The graph is going to be, both the graph will be like this: y is equal to mx plus c type of graph. Negative slope with a positive intercept. ठीक है. Yes. ये देखिए एक आपके पास ग्राफ है ln a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू kt. हमारे पास है ना, ये इक्वेशन आया था. log a नॉट अपॉन a विल बी इक्वल टू kt अपॉन 2.303. आपने जो इक्वेशन लिखा है ऐसा होगा, देखो जरा. kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a नॉट अपॉन a. यही इक्वेशन है. कहा Yes. 2.303 को नीचे ले आते हैं. kt अपॉन 2.303 will be equal to log of a naught upon a. Same thing will be there for ln also. Make sense? Yes. है ना. अब now both of these graphs, these are y is equal to mx, y is equal to mx type of graph है ना. इस वजह से क्या होगा, y एक्सिस में हमारे पास देखो क्या है, ये पूरा चीज y है ना, ये y हो गया ना, y इज इक्वल टू m k m हो गया और t क्या हो गया, x हो गया. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी passing through the origin which is having a linear positive slope. Make sense ये सुनो. अच्छा यहाँ पे देखो स्लोप के बारे में हमने क्या कहा है, के भी हो सकता है, के अपॉन 2.303 भी हो सकता है. के कब होगा, ओ माय बैड, के कब होगा, के व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, जब आपके पास y एक्सिस में ln a नॉट और यहाँ पे t हो. के पॉइंट 3.2.303 कब होगा, व्हेन द y एक्सिस इज log ऑफ a नॉट अपॉन a. मेक सेंस दिस ना, ये समझ में आ रहा है ना, कहा है नाम ना. Yes. ठीक है. मूविंग ऑन. The graph between the t half and initial concentration, so please see. t half जो होता है, it is equal to versus a naught में t half is equal to 0.693 upon k. As you can see, there is no a naught in this particular equation, so it is going to be independent. No matter how much is the initial concentration, the t half will remain constant. Make sense? Yes or no? Yes. ठीक है. All of these graphs are important. इंडिविजुअली ये पूछा गया है, बनाने के लिए भी कहा जाता है आपको, एग्जाम्स में बनाने भी मिल सकता है और पूछा भी जा सकता है. ठीक है. तो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है इन ग्राफ्स की विद द इक्वेशन एंड एवरीथिंग. T half is equal to 0.693 upon k. If T half is given, then k is also given for first order reaction. मतलब वही है चीज हम जो कह रहे थे ना, कि अगर किसी क्वेश्चन ने T half दिया है तो आपको k भी मिला हुआ है, वो इतना मान के चलता है. मेक सेंस ये सुनो, कहा है नाम ना. Yes. जैसे ही आपको Yes, टी sir. हाफ दिखे, जैसे टी हाफ दिखे आपके पास दिमाग में ये इक्वेशन आनी चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इफ यू सी के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑलवेज. ऑलवेज मतलब ऑलवेज. ठीक है. Another Yes. thing is that some examples of first order reaction are all radioactive decay follow first order kinetics. जितने भी radioactive decays हैं, ठीक है ना, चाहे वो स्ट्रॉन्शियम हो, बेरियम हो, रेडियम हो, सारे के सारे decays, all of these are first order kinetics. Hydrogenation of ethene is a first order reaction. Decomposition of N2O5 and N2O, these are also first order reactions, है ना. तो these are some examples, इनको दिमाग में रखना है. ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, है ना. रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, वो बताएंगे कि नहीं, वो बताएंगे नहीं कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है. यू शुड नो दैट रेडियो एक्टिव डीकेज और न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, डीके कुछ भी होता है ना, अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर ओनली. ठीक है. चलेगा यहाँ तक. Yes. Yes, sir. ये सवाल लिखिए जरा. क्वेश्चन लिखना. जी जी लिखिए, क्वेश्चन लिखिए.
डन राइटिंग द क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए इसमें ना दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन तभी हमने फर्स्ट ऑर्डर में रखा है, तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का दिमाग में इक्वेशन होगा। बट हाउ टू आइडेंटिफाई इन द एग्जामिनेशन दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, कैसे पहचानेंगे? कैसे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर? कौन सा इक्वेशन लगेगा, कैसे पता चलेगा था? हाँ सर, वो यूनिट हो। हाँ, वेरी गुड। द यूनिट ऑफ के है ना, के की यूनिट देख के हम लोग क्या पता लगेंगे दैट दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर। इसमें जो कुछ भी हमको करना है वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से करना है, फाइन। So here they are asking from 5 ग्राम से 3 ग्राम तक, बट वी हैव टिल नॉट लर्न अबाउट कंसंट्रेशन ओनली। तो कंसंट्रेशन में लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है ना उसमें ए नॉट अपॉन ए आता है। तो ए नॉट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। एंड ए क्या होता है? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो दिस इज गोइंग टू बी इनिशियल, ये आपके पास क्या हो जाएगा? इनिशियल वाला हो जाएगा, ये आपके पास फाइनल वाला हो जाएगा, फाइन। ठीक है ना, मोल्स ही चेंज होंगे, वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, तो वॉल्यूम को हम हटा दे रहे हैं। तो मोल्स इनिशियल है ना, मोल्स जो कि इनिशियल है अपॉन moles final. Now, what is moles? Mole is basically the mass, the given mass upon molar mass. Given mass upon molar mass. Now, given mass किसका? मोलर मास किसका? ए का। तो द मोलर मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो इसको भी आप हटा दीजिए, फाइन। सो फ्रॉम कंसंट्रेशन वी कैन डायरेक्टली राइट द इनिशियल वेट अपॉन फाइनल वेट। क्या ख्याल है? डज दिस मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. है ना? No, even though the formula it says that we have to use concentration, but we can directly use masses also because the things are uh, in a fraction. तो वहां पे चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, फाइन। तो एक बार लगाइए जरा, है ना। आपके पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, देखिए जरा क्या क्या दिया हुआ है। यू हैव द टाइम, यू हैव द इनिशियल कंसंट्रेशन, यू हैव द फाइनल कंसंट्रेशन ऑल्सो, रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी आपके पास है। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। देखिए जरा, ट्राई टू प्लग इन द थिंग्स, है ना, ट्राई कीजिए जरा, हो जाएगा सवाल, उतना हार्ड नहीं है। सर, वो और एक क्वेश्चन थी ना, वो टी हाफ वाली, जो 0.693/k थी। हम्म। First से। तो सॉरी, कांट व्हाट बी था? जो हाँ। वाली क्वेश्चन थी फर्स्ट ऑर्डर हम्म। की। हम्म। तो कांट बी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट द टोटल टाइम। नहीं ना, वो तो हम लोगों ने देखा था ना, टोटल टाइम तो कैसे मिलेगा हम लोग को? वी हैव सीन दिस ना, कि टी हाफ जो था, मतलब टोटल टाइम टी 100% तो इन्फिनिटी था ना, ओह ओके, यस सर। है ना। जो टी हाफ तो टी 75% में, टोटल टाइम ऐसे भी नहीं पूछ रहा है, तो 5 से 3 ग्राम तक का पूछ रहा है। इट इज नॉट आस्किंग टू कैलकुलेट हाउ मच टाइम वाज, कितना टाइम टोटल। वो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 5 ग्राम से 3 ग्राम तक आने के लिए। रेट कॉस्ट आपको दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। टाइम निकालना पड़ेगा, कीजिए, हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। यू गाइस नो दी वैल्यू ऑफ लॉग? हम बता देते हैं लॉग 5 और लॉग 3 का वैल्यू, ये इस्तेमाल हो आएगा आपको। लॉग 5 इट इज इक्वल टू 0.7 एंड लॉग 3 इट इज इक्वल टू 0.48। चलिए कॉपी कीजिए। वाह, हो जाए तो बताइए।
सर यस ताहा। सर 84 into 10 to the power minus 4. ठीक है, फाइन। ऐसे ही क्या ना, देखिए आपने हाँ सर। टी इज इक्वल टू, हाँ, यस। बहुत हार्ड तो नहीं है, आसानी है, फाइन। यस। चलिए ट्राई दिस वन। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% complete in 8 minutes. Calculate the rate constant. 40% कंप्लीट का मतलब हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जब भी आए ना, दैट मीन्स ए नॉट को आपको लेना है 100। 40% कंप्लीट हुआ है तो बचा हुआ कितना होगा? 60. 60। ठीक है ना? याद रखिएगा, ए जो है दैट इज ऑलवेज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो नाउ यू हैव ए नॉट, देन यू हैव ए, यू हैव आल्सो द टाइम। के निकल जाएगा। यस और नो? यस। यस। चलिए कीजिए। सर टाइम सेकंड में होगा ना? टाइम मिनट में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो के निकलेगा उसमें मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है? काइनेटिक्स में टाइम को कभी भी मिनट को सेकंड में चेंज करने की आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? बेसिक रूल आप यही रखिए। ठीक है ना? हाँ, एंड आमना। यस। ठीक है ना? यू डोंट नेवर हैव टू कन्वर्ट द टाइम टू सेकंड और मिनट, कभी भी नहीं करना पड़ेगा। यू नीड द लॉग वैल्यूज और व्हाट? सर log 6 का चाहिए। लॉग 6 क्या वैल्यू होगा? 0 पॉइंट कितना? 0.78 आई गेस। नहीं, 68, 0.668 लॉग। लॉग हम बता रहे, वैल्यू ऐड कर लीजिएगा। लॉग 3 होता 0.48, और 48 लॉग 0.78 होगा, 0.78। 48 प्लस 0.3, हाँ 0.78। सर 61 हम्म, into minus 4. देखते हैं। फाइन। यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है मिनट इनवर्स। यू आर गेटिंग 62 इंटू 10 की पावर -4 ना? यस। ठीक है, चलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन हम कराते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट द टी हाफ। ये एक कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ये सेम चीज है ना, देखो जरा। 25% डिकम्पोज हो चुका है ना? तो बचा कितना है? ए नॉट आप क्या ले लीजिएगा? 100, है ना? और ए कितना हो जाएगा फिर? 75। मेक सेंस? यस। यस। करिए जरा, जल्दी करिए। फील्स फाइन ना था, हाँ, मतलब आ रहा है ना सवाल करने तो। यस। हाँ ठीक है, फाइन।
आमना, व्हाट अबाउट यू? कुछ नहीं आंसर आ रहा आपको अभी तक? हम्म। मैंने करा था लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रही थी पहले। अच्छा। सही है मेरा। ओके, गुड। सर लॉग 7.5 की वैल्यू। लॉग 75 मत करिए ना, ये आपके पास लॉग क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना, हाँ है ना? हाँ। तो चलो, ये 4/3, तो log 4 इट इज इक्वल टू 0.6, log 3 इज इक्वल टू 0.48। हो गया? हाँ जी, हो गया। 1 मिनट। हम्म। सर 25.66। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ये के यहाँ से निकाल लिया था ना आपने? हाँ सर। और उसके बाद टी हाफ निकाला या फिर के निकाला बस? टी हाफ निकाला। टी हाफ निकाला है। टी हाफ 24 आ रहा है, लेकिन आई हैव टू कैलकुलेट थिंग। So we have 2.303 divided by what? 10 and multiplied by log of so K is 0.028 ना? हाँ सर। हाँ सर। सर 0.0028, नहीं 0 0.028। 0 to 8 ना? हाँ, 24.75 is the answer। ठीक है, यस। सही है। 24 आपके पास जो भी आ रहा है, फाइन। आमना आपका भी ठीक है अप्रोक्सीमेटली। एक आखिरी चीज हम लोग देख लेते हैं, फिर उसको एंड करेंगे ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। शो दैट द फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, है ना, ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। है ना, मतलब कि अगर आपको 90% कंप्लीट करना है रिएक्शन को 10 मिनट लगेगा, 99% आने में इसको कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है सवाल क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रूफ। ठीक है, दिस इज अ प्रूफ। यहाँ पे मतलब कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, बट आपको देखिए
क्या करना है, दो तरीके से हम लोग कर रहे हैं, देखो दो तरीके नहीं है, मतलब आई एम डिवाइडिंग दिस T90% और T99%, है ना। तो T90% में ए नॉट को 100 लेना पड़ेगा और ए बचेगा 10। सही है, हाँ या ना। यस सर। 99 में ए नॉट विल बी 100, बचेगा 1। सही है, यस सर। ठीक है। T90% will be equal to 2.303 upon k log of 100 upon 10, which will be equal to log 10। तो T90% log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो T90% will be 2.303 upon k। यहाँ तक ठीक है। यस सर। यस। T99% में क्या होगा, 2.303 upon k log of 100 upon 1, है ना। एंड log 100 की वैल्यू 2 होती है, राइट, ये सुनो, ये सब क्लियर है ना। नाउ व्हाट इज यस। रिमेनिंग, तो T99% is equal to 2.303 upon k into 2, 2.303 upon k into 2, 2.303 is nothing but T90%, क्या ख्याल है। यस। So I can say that the T99% it is equal to 2 times of T90%। सही है, यस। ठीक है, चलिए। So with this I'm ending this class 15 minutes before because I have been teaching for like I don't know 4 घंटा होने वाला है, fine, I have not even stood up। So we will continue from here this particular question, and I think this is the